इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं जाने माने बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरखशकर। अविनाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Key domestic indices end higher for third straight session. Sensex finishes above 71,700 mark. Nifty settles near 21,650. Indian IT majors, TCS and Infosys announced third quarter results. And direct tax collections rise 17% so far in current financial year. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में लिवाली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 71,700 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 21,650 के नजदीक आया। आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस ने तिमाही परिणाम घोषित किए और चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में अब तक 17% की हुई बढ़ोतरी। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज निवेशकों ने खरीदारी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 63 अंक यानी 0.09% की बढ़त लेकर 71,721 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 28 अंक यानी 0.13% उछाल के साथ 21,647 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.66% की बढ़ोतरी हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.79% ऊपर आकर बंद हुआ। Key domestic indices ended higher for the third straight day today. The BSE's Sensex finished above the 71,700 mark, while the NSE Nifty settled near the 21,650 level. The Sensex rose 63 points or 0.09% to end at 71,721. The Nifty gained 28 points or 0.13% to close at 21,647. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.66% and the small-cap index rose 0.79%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 13 companies appreciated, while those of 17 companies declined. Reliance Industries surged 2.6%, Axis Bank gained 1.4%, and Ultratech Cement rose 1.3%. On the other side, Infosys declined 1.6%, Hindustan Unilever fell 1.5%, and Wipro slipped 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors gained while 7 declined. Energy sector gained 1.6%. Auto and oil and gas both rose 1.1%. Consumer durables added 0.9%. On the other side, capital goods fell 1.2% and industrial slipped 0.6%. Tech and IT both lost 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 2,355 companies appreciated, while those of 1,475 declined. Shares of a total of 107 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 83 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक
बढ़त के साथ 102.37 पर चल रहा था। Avinash, if you look at the markets today, very slight, the Sensex closed in the green, but very, very modest gain. And in fact, towards the end of the, trading, the markets were in the red. What do you attribute it to? No, I think, markets are undergoing a process of some sort of consolidation ahead of the quarterly result numbers. And I think broadly, now markets will be focusing more on stock-specific activity. Like today, IT majors like Infosys and TCS reported numbers. We'll now get several companies which will be reporting their Q3 numbers. So markets will be looking at quarterly numbers in more detail. And the index will move in a very narrow range. Although the move was, evident today, we saw that there was a lot of selling from domestic funds as well as from the FIs. And I think as long as the liquidity from FIs continues to be slightly on the negative side, any further upside in the very near term looks very unlikely, because markets have risen very sharply in a very short period of time. Now the markets would consolidate and look at stock-specific, companies based on the quarterly numbers, management commentaries, which will be now coming out later in this month. Avinash, do you also think that the US inflation data is expected, in the next few hours from now? Do you think the markets were also reacting to that? No, it will definitely react. But as Mr. Powell has already clearly guided, that market was expecting for the first rate cut sometime in the month of March or April, which I think may not happen. So inflation still continues to be elevated, and I think whatever commentary comes post the inflation number is going to be very important. So I think markets are already set up for the fact that inflation number may not show any major improvement, and we'll have to wait for at least another 3 to 4 months before we can see some cooling off on the inflation side, and then only interest rate cuts could happen. अविनाश जी, हम आज के कारोबार पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे। बाजार में आज कुल मिलाकर फ्लैटेस्ट टोन दिखा सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में, लेकिन छोटी और मझौली कंपनियों में अच्छा खासा लिवाली हम देख रहे हैं। तो इस लिवाली के पीछे क्या हम कारक समझें आज के कारोबार में? देखिए, छोटी मझौली कंपनीज में हमने देखा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो काफी कंपनियां ऑटो कंपोनेंट में से है, काफी कंपनियां रियल एस्टेट में है, सीमेंट में है, इंफ्रा में है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में है। तो इन्वेस्टर्स नंबर्स और जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि अभी भी लार्ज कैप में जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो काफी हद तक जो म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा आ रहा है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में ज्यादा आ रहा है। तो उसीलिए हमको लग रहा है कि छोटे मझोली शेयरों में आपको काफी ऐसे ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और यही कारण है कि आपको ऐसे फ्लैटिश मार्केट में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ब्रॉडर मार्केट और मिड कैप से ही मिलेगी। Avinash, we are already entered the last quarter of the financial year. So, based on what has happened during the last in this financial year, which are the sectors which do you think are likely to perform better than the others? No, I think clearly, if you talk about sectors, I think the first sector would be capital goods. There is definitely a very strong momentum here, and I think you could see very strong Q3 numbers. The second sector would be the automobile sector. We are seeing across all the segments, commercial vehicles, two-wheelers, passenger cars. So automobile sector is one sector which should do well. Third sector is real estate. I think real estate, normally the festive quarter is supposed to be a very strong quarter for business. So real estate should do well, and I think cement is one sector which I think should do well. My sense is these 3-4 sectors which are domestic facing are likely to do well, unlike the global sectors, where considerable headwinds continue to remain. श्रोताओं, आपने हमारे जो विशेषज्ञ हैं अविनाश जी, उनकी सलाह को ध्यान से सुना होगा कि हमारे जैसे यानी हमारे आपके जैसे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए कौन से क्षेत्र बेहतर रह सकते हैं आने वाले दिनों में, जहां पैसा लगाना अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकता है। यहां पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। बने रहिए हमारे साथ। कुछ पल के बाद हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. Let's get on with the other stories. India's largest IT services company, Tata Consultancy Services Limited, TCS, today announced its financial results for the third quarter of the current financial year. TCS reported a 2% year-on-year growth in consolidated net profit for the quarter to 11,058 crore rupees. The company also reported a revenue increase by 4% to 60,583 crore rupees, driven by strong double-digit growth in emerging markets led by India. The company said in a statement that growth in the revenue was also led by energy, resources and utilities, manufacturing and life sciences and healthcare. The board of the IT major has also recommended a special dividend payout of 18 rupees per share and an interim dividend of 9 rupees per share. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने भी आज तीसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए। कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में चालू वित्त वर्ष के उसे 6,106 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.3% कम है। कंपनी को पिछले वर्ष इसी अवधि में 6,586 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। हालांकि इस दौरान संचालन से कंपनी के राजस्व में 1.3% की वृद्धि हुई और यह राशि 38,821 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी को संचालन से 38,318 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। यहां पर अविनाश जी, हम आईटी सेक्टर की जो पूरी कह लें कि अवस्था है, जो उनकी दुनिया में कह लें कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसमें इनका आउटलुक कैसा रहने के आसार लग रहे हैं और ये परिणाम सबसे पहले क्या दर्शा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज जो नतीजे दिखाए वहां पे मैं यही कहूंगा कि टीसीएस के नंबर्स इनलाइन थे और थोड़ी उम्मीद से बेहतर आ गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से रिकवरी आई नहीं है। हम समझते हैं कि देखिए, अभी भी जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है कि जिससे एक स्टॉक में कोई बड़ी तेजी या कोई रीरेटिंग आने की अपेक्षा रहेगी। हालांकि नंबर्स मार्केट के उम्मीद से थोड़े बेहतर है। मार्जिन 25% है, जो मार्केट को लग रहा था शायद मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आएगा। अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के नंबर्स उम्मीद से काफी खराब आ चुके हैं, 7% डिक्लाइन आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, अभी मार्केट को कोई नया ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि अभी भी यूएस मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें तो हेडविंड्स काफी स्ट्रांग है। प्लस आने वाला साल यानी जो अभी 24-25 जो है, यहाँ पे एक बात भी इम्पोर्टेंट रहेगी कि यूएस इलेक्शंस है, और यूएस इलेक्शंस के टाइम पे जो आईटी बजट्स होते हैं वहां पे इमीडिएटली कोई इंक्रीज आईटी बजट्स में जल्दी होता नहीं, तो कम से कम 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। इमीडिएटली तो मुझे लगता नहीं कि कल के सत्र में बाजार में कोई बड़ा रीरेटिंग इन स्टॉक्स में आएगा। मार्केट के उम्मीद से ही नंबर आ गए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स आर फ्री वैल्यू, तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। So, Avinash, what you're saying is that during the pandemic, when we saw the IT companies performing so well due to obvious reasons, post-pandemic, because of various reasons, the companies are not performing as well. And like you also said, there is also political factors playing here. As you rightly pointed out, that US elections are due this year, and till the time that US election results are there, are clear, the companies, their focus on the budget would be limited. No, exactly. See, because one thing is very clear that the US election is a very important event, and until there is clarity on the final result, IT budgets are not going to be cleared in a very quick manner. So next couple of quarters, at least next 2 to 3 quarters, we could see some consolidation. Although prices have come down to attractive levels, the risk reward, would depend on what is the growth quotient which is going to come from the US and the European markets. So I think at best, these companies could be market performers, but any outperformance will definitely take a little more time. So I would suggest that, a TCS or a Infosys, whoever has these shares earlier, should continue to hold. But fresh buying at these levels is not going to give them any immediate alpha or near-term upside, considering the kind of headwinds which we still see in the US and the European market. And if I talk about, the wider, in a wider context, tech companies, major tech companies of the world like Google and Amazon, they are announcing, there have been major job cuts there. How do you look at this? No, I think, major IT companies are facing severe margin pressures. As you rightly pointed out, that Amazon, Google,
these companies are reducing their employee workforce because they are finding that top line growth has not been commensurate with the kind of expectations they had. So I think there's a lot of margin pressure, and obviously that is the result. They are going in for a major cost-cutting exercise. See, companies which are in the AI space, in the machine learning space, I think these are the companies which I think investors should focus, because that is where the opportunity is huge, and where I think margin expansion is going to happen quite positively for a few companies. So I think services in India are definitely going to find it tough, because there the environment is extremely cloudy, and I think it will take some time before we see some tailwinds emerge. अविनाश जी, आपने एक बड़े अच्छे क्षेत्र की बात की कि एआई सेक्टर में निवेश करना आने वाले दिनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जो हमारे निवेशक हैं, हमारे जो श्रोता निवेशक हैं, उनके लिए एआई कंपनियों में कहाँ भविष्य आपको दिख रहा, और किस तरह की कंपनियों की छानबीन उनको करनी चाहिए जिसमें कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें बेहतर मिल सकेंगे, और साथ ही ये कंपनियां कहाँ सूचीबद्ध हैं या कहाँ इनको किस रूप में निवेश करना चाहिए? तो देखिए, एआई, मशीन लर्निंग आईटी कंपनीज में भी है, नॉन आईटी कंपनीज में भी है। हम समझते हैं कि आईटी कंपनीज की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम है। ये कंपनियां ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनीज है, जहाँ पे ये मॉडल सर्विसेज मॉडल नहीं है, ये SaaS मॉडल से काम करते हैं, और इसीलिए इनके लिए आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बढ़ेगी, इनके लिए कॉस्ट प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है। अगर हम दूसरी कंपनीज की बात करें जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, उसमें से एक अच्छी कंपनी एफले इंडिया है, जो बेसिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग मार्केट में काम करती है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है, जैसे कि सीडीएसएल हो गया, उसके बाद एमसीएक्स हो गया, ये सारी कंपनीज पे फोकस करिए। आईएक्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी खर्चा इन्होंने कर दिया है, और रेवेन्यू ग्रोथ जो भी आएगा वो डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज और एआई कंपनीज यहाँ पे फोकस रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा होगी। Avinash, you just mentioned two things. You mentioned there's a service and a product sector in AI. So for our listeners, can you explain it a little more? What is this service and product sector in AI companies? No, basically, when you talk about a product, what it means is that the product is not sold to the customer. He is basically given access to that product on a subscription basis, which means that the product IP remains with the company. And as far as service companies are concerned, these companies are basically working on large IT projects. Company like Infosys, or for that reason TCS or HCL Tech, these companies are basically in the commodity based kind of segment of the market where margins are less. And frankly, most of these companies like TCS or for that reason Infosys are still trading at around 20 to 26 times 1 year forward earnings. So clearly, in the product, kind of companies where the SaaS model works, typically companies like Intellect Design or for that reason Oracle, these are the companies where I think the growth potential will be much better, because AI and machine learning is growing rapidly, and new sectors like logistics, infra, these are also sectors which are now adopting artificial intelligence and machine learning quite swiftly. At this point, let's go into a short break, after which we will come back with Market Mantra. मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर लिवाली तेज रही, हालांकि दक्षिण कोरिया को नुकसान भी उठाना पड़ा। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 1.7% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स में 1.3% की वृद्धि हुई। उधर हांगकांग का हेंग सेंग 1.3% ही बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% नीचे चला गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी लिवाली दिख रही थी। अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100
0.1% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.3% की वृद्धि थी और फ्रांस का कैक 40 0.2% ऊपर कारोबार कर रहा था। Moving on to the US markets, three major US indices ended higher yesterday amid a surge in mega caps. However, gains were constrained in anticipation of upcoming inflation reports and significant bank earnings later in the week. The Nasdaq Composite Index gained 0.58% and the S&P 500 rose 0.47%, while the Dow Jones Industrial Average rose 0.45%. यहाँ पर हम अविनाश जी यूरोपीय शेयर बाजार की ओर या यूरोप कह लें एशियाई यूरोप जो माली हालत है वहाँ के शेयर बाजारों की ओर वहाँ समझना चाहेंगे कि वहाँ किस रूप में बर्ताव रहेगा। और साथ ही एक कई बार हमारे जो मतलब भारतीय कह लें निवेशक हैं वो विदेशों में अवसर ढूंढते रहते हैं, तो उनके नज़रिए से भी कि वो किस तरह वहाँ पर यदि वहाँ खरीदना चाहें तो उन्हें क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन कंपनीज में निवेश करने के लिए आरबीआई ने एक लिमिट सेट किया है। तो करीबन आरबीआई के हिसाब से आपको अगर खरीदना है तो आप यूएस मार्केट्स में जो भी शेयर्स है जैसे गूगल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स, वैसे शेयर्स तो आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो ग्रोथ उनको मिलेगा वो यूएस मार्केट्स में नहीं मिलेगा। और क्लियरली इंडियन मार्केट्स प्रीमियम इसलिए ट्रेड क्योंकि आज इंडियन मार्केट में सभी लोगों को पता है कि ग्रोथ करीबन 6-7% इकोनॉमी का होने वाला है। आने वाले साल में जिस प्रकार से एफआईएस के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे उससे तो लगता है कि और थोड़ी तेजी होगी। तो मैं यही कहूंगा कि जिनको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है वो तभी करे जब वो फुली इन्वेस्टेड इंडियन मार्केट्स में हो। अगर किसी को शुरुआत करनी है और छोटे निवेशकों को अगर शुरुआत करनी है तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अगर आपको डायरेक्ट शेयर में पैसा लगाना नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, इंडेक्स फंड्स में लगाइए, जहां पे पैसा सेफ भी होगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड आने वाले 12-15 महीने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छे एडजस्टेड रिटर्न्स कमा सकते हो। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के सकल संग्रह से लगभग 17% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि यह संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान के 80% से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि कॉरपोरेट आयकर की वृद्धि दर 8.32% और व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 2.6% से अधिक है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2,48,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। RBI Governor Shaktikanta Das said today that the central bank does not emulate others when it comes to regulations. He further asserted that the banks as well as his own opposition to cryptocurrencies remain unchanged. He said this a day after US regulators allowed Bitcoin exchange traded funds. Mr. Das also said that emerging markets and the world cannot afford to have a cryptomania. While responding to a query with the development in the US with respect to cryptocurrencies, Mr. Das said that what is good for another market need not be good for us. The RBI governor also said that for emerging market economies and advanced economies, traveling down that path of cryptocurrencies will create huge risks, which will be very difficult to contain going forward. Avinash, the RBI governor has made a very, very strong statement. I mean, right a day after the US regulators have allowed the Bitcoin exchange traded funds, he's saying that this is not the road, this is not the road for India to take. How do you look at it? No, I think RBI governor is extremely right in thinking so, because see, the risk reward and the risk quotient is extremely high. I would believe that RBI has always been little proactive in ensuring that domestic investors are little careful about preserving their capital. And I think there are many other options available in the market. So to that extent, I think the RBI has taken a very strict and a very vigilant view, considering that the risk quotient is very high. And therefore, it is better that investors be little careful and stick to core investments, which would obviously give them a better risk reward. At the same time, keep their capital safe and go medium to longer term. So I think it's a wise decision, which I think the market should also obviously sentimentally create for this. यहाँ पर अविनाश जी हम ये समझना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को जिसमें मतलब कह लें कि लेन देन के स्रोत को समझना
थोड़ा कठिन होता है। दुनिया में जब अब इसे कह लें कि वैध बनाया जा रहा है और इसके लिए यानी बाजार विकसित हो रहा है, तो यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जैसे यानी पहले आशंका जताई गई थी कि काले धन का प्रवाह या आतंकवादी फंडिंग के लिए इसे रास्ते खुलते हैं, उस दिशा में दुनिया की सरकारों द्वारा इसे वैध बनाना कहाँ ले जा सकता है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट क्लास है जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मली रिटेल निवेशकों को समझ में नहीं आता, और ये ज्यादातर बड़े निवेशक और बड़े फंड्स जो हेज फंड्स होते हैं वहीं पे काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो ओवरऑल ग्रोथ हो गया है ग्लोबली, वो इंडिया में मेरे ख्याल से छोटे मात्रा में जरूर हो गया है, लेकिन वहां पे रिस्क कोशेंट सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है कि आपको शायद वोलेटिलिटी का सामना करने पड़े, और इसमें अभी भी इतनी रिसर्च नहीं हो गई है जिससे निवेशकों को उसको सब कुछ इजीली समझ में आए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इंडिया में थोड़ा समय लगेगा इस मार्केट को ग्रो करने के लिए, बट अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हमारा जो कोर इन्वेस्टिंग क्लास है इंडिया में, वो अभी भी ऐसे एसेट क्लास को ऊपर भरोसा करते हैं जहां पे कैपिटल सेफ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत लंबा होता है, अच्छा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही सिग्निफिकेंटली हाई होता है। Moving on to commodities, oil prices rose more than 1% today after an oil tanker was boarded by an armed group in Oman. This development raises concerns about a potential escalation of conflict in West Asia. In intraday trade, Brent crude was trading 1.40% higher at $77.87 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 1.44% higher at $72.40 per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 140 रुपए बढ़त के साथ 62,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध के लिए चांदी भी मजबूती के साथ 81 रुपए बढ़त के साथ 72,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूती के साथ $2,036 और 40 सेंट प्रति औंस पर था। वहीं चांदी भी बढ़त के साथ $23 और 14 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अविनाश जी, यहाँ पर सोना विशेष रूप से कह लें कि सोने का जो रिटर्न रहा है पिछले कुछ समय से अच्छा खासा देखा जा रहा है। वर्तमान जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें सोने में निवेश के लिए अभी कैसा समय चल रहा, ये समझना चाहेंगे हम आपके माध्यम से। सोने में अगर अभी पैसा डाल, थोड़ा बहुत पैसा लगाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ग्लोबली देखिए सोना ऑल द सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स तो गोल्ड में पहले से थी। तो हो सकता है कि आपको साल भर की अगर नजरिया अगर बात करें तो 5-6% का एक डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकता है। सोना और एक एसेट क्लास ऐसा है जहां पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में आती है तो ही आपको बहुत बड़ी मात्रा में अपसाइड मिलने की पॉसिबिलिटी मिलती है, बट अदरवाइज जिनके पास गोल्ड बिल्कुल नहीं है वो थोड़ा सा निवेश जरूर कर सकते हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से अविनाश जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices end higher for third straight session. Sensex finishes above 71,700 mark. Nifty settles near 21,650. Indian IT majors TCS and Infosys announced third quarter results, and direct tax collections rise 17% so far in current financial year. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. Till then, namaskar, goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। This is Akashvani.